بہت ہی احسن انداز میں مشہور عالم اور مقبول بارگاہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ بردہ شریف آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں 5 زبانوں میں پیش کیا جا رہا تھا۔ حاضرین گرامی، قابل عزت احترام ناظرین و سامعین، اسلامک سائنس اکیڈمی بوائز گرلز ہائی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں اب آپ کے سامنے تقاریر کا سیگمنٹ پیش کیا جائے گا، جس میں اسلامک سائنس اکیڈمی کے ہونہار طلباء اور طالبات اپنے اپنے مخصوص خوبصورت اور دل نشین انداز میں آواز و الفاظ کا جادو جگائیں گے۔ بڑی توجہ سے اور ہمہ تنگوشی سے سماعت فرمائیے گا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں آواز کی گرج بھی ہوگی، نشیب و فراز بھی ہوگا، شبنم کی ٹھنڈک بھی ہوگی، گلاب کی مہک بھی ہوگی، بلبل کی چہک بھی ہوگی، مفاہیم کا سیلاب بھی ہوگا، مد و جزر کی کیفیت بھی ہوگی، بلند آہنگی و شیریں بیانی بھی ہوگی۔ غرض یہ کہ طلباء و طالبات اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالوں سے گفتار تک کی منازل کو حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بوائے سیکشن کے عبداللہ مشتاق سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کی پرزور تالیوں کی گونج میں مائک پہ آئیں اور اپنے الفاظ و آواز کا جادو جگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، آج کی اس بزم میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے زندگی درد میں ڈوبی ہوئی شہنائی ہے، جو ایک حقیقت ہے۔ یہ ایک حقیقت شناس اور حقیقت پسند شخص کی پیش کردہ قرارداد ہے۔ یہ قرارداد ایوان نہیں، میں تو اسے قرارداد حقیقت کہوں گا، ایک ایسی حقیقت جس کے وجود سے انکار ممکن ہی نہیں۔ بقول شاعر، قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ جناب صدر، زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جناب صدر، دنیا ایک گلزار ہے جس کے ہر گل پر خار ہے، پھر اس گل کو بھی نہ ثبات ہے نہ قرار ہے۔ دنیا کی گاڑی کے تقدیر اور تدبیر 2 پہیے ہیں، دونوں کی موجودگی ہی گاڑی کو چلا سکتی ہے۔ دنیا میں رنج و الم کو لازمی اور خوشی و مسرت کو عارضی اور اتفاقیہ خیال کیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی رنگینی اور دل فریبیوں سے بھری پڑی ہے۔ خوشی کی تلاش میں ہزاروں مشکلات، مصیبتوں، ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک خوشی سے 100 غم منتشر ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری خوشیاں پامال اور غم عمیق ہیں۔ میر درد کہتے ہیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ جناب صدر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے۔ اس کے حلال چیزوں پر حساب اور حرام پر عذاب ہوگا۔ جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر فتنے میں مبتلا ہے، جو محتاج ہے وہ غم میں گرفتار ہے۔ جناب صدر، دنیا مقام غم ہے، خوشی کا نام نہیں، جو اس مقام میں رہ گیا نوحہ گر گیا۔ جناب صدر، گوتم بدھ کہتے ہیں، دنیا دکھوں کا کھو ہے، یہ بات درست ہے۔ اس جہان فانی میں نہ کسی کو قرار ہے نہ سکون، کسی کو روزگار کا غم، کوئی عشق و محبت کی بلا میں مبتلا، کوئی افسر سے نالا، کوئی ملک گیری کے لیے پریشان، کوئی بادشاہ کوئی خلوت میں پریشان، کوئی جلوت میں حیران، کوئی آخرت کے خوف سے پریشان۔ بقول شاعر، غم کی عالمگیریاں چھائی ہوئی ہے 4 سو، غم کی عالمگیریاں چھائی ہوئی ہے 4 سو، ہے اس غم کی جہانگیری کا سب پر اقتدار۔ جناب صدر، مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے، ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی۔ دکھ، سکھ، غم، شادی، بیماری، تندرستی، زندگی کے ناہموار راستے پر سفر کرنے والے کے لیے مختلف منزلیں ہیں جو چاروں ناچار سب کو پیش آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت کا در کیا جانا، ان کے بیٹے قابیل کا اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جہان خراب آباد کی بنیاد ہی رنج و غم، قتل و غارت اور ظلم و ستم پر قائم ہے۔ جناب صدر، رب کریم نے مٹی کے جس خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ فرشتوں سے تیار کروایا، اس پر 40 روز تک بارش ہوئی۔ 39
हालात इज़्तिराब में। जनाब सद रब करीम ने कायनात को हुस्न फितरत पर तख्लीक किया, आदम व हवा की फितरत पर इस कायनात को शजर हजर से सजाया, दरियाओं की रौनक बख्शी, चश्मों का तरन्नुम बख्शा, सब्जे की चादर देवे तन की, फलों की चाशनी और फूलों के रंग बख्शे, बारिश को बाराने रहमत बनाया, रोजगार के असूल अता किए, अहलो अयाल से रबत के कवानीन अता किए। जनाब सद इंसान मादा परस्त है, मादियत पर मबनी हर उसे एक फितना है, हवस और गर्ज को जन्म देता है, लालच और हिर्स पैदा करता है, धोंस और जुल्म पैदा करता है, हुस्न की जुस्तजू इंसान को गुमराह कर देती है, वो रोशनियों के पीछे भागता भागता अपना हकीकी मंजिल और अपनी हकीकी मकसद हयात भूल जाता है। इस तरह ये जिंदगी दर्द में डूबी शहनाई बन जाती है। बकौल शायर, इस अंजुमन में आकर राहत नसीब किसको, इस अंजुमन में आकर राहत नसीब किसको, परवाना भी जलेगा और शमा भी जलेगी। जनाब सद शेक्सपियर कहता है कि अगर इंसान अपने नविश्ता तकदीर को पढ़े और देखे कि किस तरह इत्तफाकात ज़माना इसका मज़ाक उड़ाते हैं और तगय्युरात गर्दिश के प्याले मुख्तलिफ रंगों में भर भर कर कैसे इसे पिलाए जाते हैं, तो एक मसरूर तरीन नौजवान भी अपनी किताबें जिंदगी बंद करने पर माइल हो जाए। किसी दाना ने क्या खूब फरमाया है, दुनिया के गुलजार से दिल न लगा, दुनिया के गुलजार से दिल न लगा, क्योंकि इस नौनिहाल को किसी सरजमीन की दूसरी सरजमीन के लिए सरसब्ज किया गया है। जनाब सद दुनिया परस्तों का ख्याल है कि दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम ना होंगे, दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम ना होंगे। लेकिन हाल ये है कि दुनिया के जो अलम है हरगिज वो कम ना होंगे, दुनिया के जो अलम है हरगिज वो कम ना होंगे, सदमे यही रहेंगे सद शुक्र हम ना होंगे। जनाब सद दानिशमंदों की अक्सरियत ने दुनिया की जिंदगी में रंजो गम के हिस्से को खुशी के हिस्से से कई गुना ज्यादा बताया है। तजर्बात मुशाहदात भी इस मकूले के शाहिद हैं कि किसी जगह जिंदगी दहशतगर्दी का शिकार, किसी जगह सैलाब की तबाहकारियां जिंदगी के लिए परेशान कुन, किसी जगह सुनामी तूफान से जिंदगी बर्बाद हो रही है, गुर्बत और अफलास से जिंदगी खुदकुशी पर मजबूर है, अगवा कत्लो गारत डाका जनी चोरागिरी ने घर के अंदर घर के बाहर हर जगह जिंदगी को परेशान कर दिया है। महंगाई बेरोजगारी ने दुनिया की जिंदगी को जहन्नुम की जिंदगी बना दिया है। उमर ने बहुत पहले कहा था, दुनिया में इंसान से ज्यादा मगमूम और मखजून और मोहताज हस्ती नहीं। आज के हालात ने इस पर सच की मोहर लगा दी है। दिल की आंखों से जरा खुमखानाए आलम को देख, दिल की आंखों से जरा खुमखानाए आलम को देख, गम की तस्वीर है हस्ती की ये बहार। शुक्रिया। अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने अब्दुल्ला मुश्ताक अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इसके दौरान इस तकरीब सईद में जो हमारे मेहमानान ने ख़ुसूसी तशरीफ़ लाए हैं उनमें मियाँ खावर शफीक अहमद चेयरमैन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। राना ताहर सलीम खान चेयरमैन आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मियाँ नदीम अहमद जिली सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस, वो भी तशरीफ लाए, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और बिलखुसूस चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहेब डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वो तशरीफ ला चुके हैं। दिल की अथाह गहराइयों से जुमला मुंतज़िमीन की तरफ से मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। नाज़रीन व सामईन, जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जिंदगी दर्द में डूबी हुई शहनाई है, अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहे थे अब्दुल्ला मुश्ताक। और इसी पेश की गई करारदाद की मुखालफत में अपने दलाइल व मौक़िफ़ का इजहार करने के लिए आपकी तालियों की गूंज में माइक पे आने की दावत दे रहा हूं बॉय सेक्शन के अहमद रिजा को कि वो अपने अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सद, आज के इस ऐवान में पेश की गई करारदाद
जिंदगी दर्द में डूबी हुई शहनाई है कि मुखालफत में इजहार ख्याल करूंगा। जनाबे सर, अल्फाज की रवानी, आवाज की गर्ज बर्स, लहजे का ज़ेरो बम, अशआर का तरन्नुम और पेश कर लबास की नफासत से जनाब कायद ऐवान पर जिंदगी दर्द में डूबी हुई शहनाई है कि असरात नजर नहीं आते। जनाबे सर, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के आप खाकशिया करते हैं। जिंदगी नाम है दिल की धड़कन का, जिंदगी अमल, जिद्दोजहद और कोशिश से इबारत है। अल्लामा इकबाल ने कहा, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जनाबे सर, जिंदगी का इसी में लुत्फ आता है कि चारों तरफ हम मुसीबतों और आफतों में गिरकर इंसान इन पर फतह पाए, यानी इसे यही हमारे रामस्कुन बख्शा है कि इंसान तड़पे फड़के लड़े बड़े कश्मकश गामा खेती में मसरूफ रहे। यानी जिंदगी इसी सूरत में तरक्की कर सकती है कि रास्ते में पेश आने वाली तमाम मुश्किलों और रुकावटों को बहादुर में मुकाबला करके गलबा हासिल करे। शायर मशीक ने फरमाया, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए अकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जनाबे सर, खुशी और गमी के इम्तिजाज का नाम जिंदगी है। कहीं बचती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। दुनिया में मौत इंसान का बेखबर साथी है, नामालूम किस वक्त हलाक कर डाले। जनाबे सर, जिंदगी अताए रब करीम है, जिंदगी अमल की जुलागाह है, जिंदगी मौलफ फल का इकलामत नहीं सिलसिला है, जिंदगी में दाने कारदार है। मुशाहिर आलम और काबरीन जो आज आसमानी शहरत पर मेहरमा बनकर जगमगाते हैं, उन्होंने सैये पहन और जदन सलसल से रिश्ते पाई, मसाइब की यरश, नाकामियों की यलगार, हवादस की आंधी उनका पाए सबात को मुतज़लज़ल न कर सकी। फिर आज उनके नामत मुतासिर बुलंदी की अलामत बन गए। उनके तस्करे से रूह को बालिदगी मिलती है। बकौल शायर, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदा में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदा में है, सिर्रे आदम ज़मीरे कुन फ़क़ा है जिंदगी। जनाबे सर, जिंदगी खौफ और उम्मीद का मार्का है। इसमें हर वक्त दोनों किस्म की सूरतें पेश आती रहती हैं। इंसान जिस काम में हाथ डाले उसी में दोनों किस्म की सूरतें पेश आ सकती हैं, कामयाबी भी और नाकामी भी। कामयाबी उम्मीद है, खुशी है, मुसर्रत है, शादिमानी है, जबकि नाकामी तकलीफ है, खौफ है, दर्द है। जनाबे सर, तख्लीक के आदम के साथ वजूद इब्लीस की हकीकत का नाम है। रूहानियत का गोती दास्ते रोज़े अव्वल से एक दूसरे से बरसरे बेकार हैं। कभी हाबील और कबील के रूप में, कभी इब्राहीम और नमरूद की सूरत में, कभी मूसा फिरौन के रूप में, कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के अंदाज में, कभी सरज़मीन करबला पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और यजीद के किरदार में। कोई नेज़े पर कुरान सुनाकर खुश हुआ, कोई सर को नेज़े पर उठाकर खुश हुआ। जनाबे सर, जिंदगी दर्द में डूबी हुई शहनाई नहीं बल्कि असूले मकसद की मंजिल है। इंसान दुनिया के समुद्र में तिनके की तरह बहा चला जाने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसलिए भेजा गया कि मलाह की तरह मौजों का मुकाबला करता हुआ औरों को पार उतारने की कोशिश करे। यही जिंदगी है, यही खुशी है, यही मुसर्रत है, यही शादिमानी है, इसी का नाम मकसद हयात है। जनाबे सर, जिंदगी की सारी रानाइयाँ मेहनत के रोहने मिन्नत है। कामरानियों का सरचश्मा आसानियों से गुरेज और मुश्किलात का लब्बैक कहने में है। जिसका सफीना हयात हवादस की बवर में नहीं बल्कि वो जिंदगी के मफहूम से बेबहरा